Hello. Good evening, guys. Can everyone hear me? Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay. Yeah. So in the last lecture, we have done ammeter, right? And we have solved the numerical. Okay. So today we'll do the voltmeter and let's finish the topic. Okay. And have you guys given the test? Your voice Yes, is sir. breaking. My voice is breaking. No, sir. No. Okay. Please check your internet connection. अगर मेरा voice break हो रहा है तो Sir, excuse me. yeah. Sir, this is my first lecture of yours. So can you please tell which topic is going on? Okay. So yeah. Actually, today's the topic is the last day of this particular topic. We are like going to finish current electricity today, and in the next from the next lecture, we'll be starting a new topic.
So since it's your first lecture, so it's okay if you don't understand, you can ask me the question. And for the lectures which you have missed for this particular topic, okay, you can ask for the videos from the ma'am. Okay, she'll provide you the videos. Okay, and if you still have a doubt, you can ask me in between the lectures. Okay, Sir, sir. Thank you. so this is a physics entrance lecture, no? Today's entrance lecture. Yes, sir. Yes, Okay, sir. JE just lecture. okay. Give me 2 minutes. Okay, guys, give me 2 minutes. Just let me get the PDF. You have to reshare everything. Okay, guys, can you see the screen now? Yes, Yes, sir. sir. Okay, fine. Acha, so we'll be doing work energy, right? We have work energy, correct? Yes, sir. Okay, I'm looking for the PDF. Sir, first chapter is physical world and measurement, right? No, actually, we were doing laws of motion and work energy. Okay, so we'll be doing that. Physical motion, I think ये हो चुका है कि नहीं हुआ है? सर हम लोग तो अभी 12th के लिए नए आए हैं तो हम लोग को नहीं पता। अच्छा नहीं, तो फिर रुक जाओ ना, फिर अभी वो एक्चुअली टॉपिक हो चुका है, आई थिंक सो। ओके, ठीक है। Oh, I'm not getting the PDF. Just give me 2 minutes.
Okay, guys, actually, I'm not getting the PDF. So today, what we will do is we'll finish the topic, okay, current electricity, and in the next lecture, we'll start with JE. Okay, Okay, sir. okay, fine. So yeah, so हमने लास्ट लेक्चर में एमीटर कर दिया था, ठीक है. So we'll start with voltmeter, galvanometer as voltmeter. Okay. Okay, everyone can see the screen, right? सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Okay, okay, fine. Yes, sir. So now galvanometer as a voltmeter. Now if you guys remember in the last lecture we have done ammeter. So ammeter में हमने क्या किया था? हमको galvanometer को ammeter में हमने कन्वर्ट करने के लिए resistance को shunt में कनेक्ट किया था, right? We have connected the resistance in the shunt ना? आपको याद होगा, देखो यहाँ पे किया है ना, शंट में कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस को, ठीक है, करेक्ट. सो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है. इसको किस में कन्वर्ट करना है, कैलोमीटर को वोल्ट मीटर में. नाउ वी ऑलरेडी नो कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. वी ऑलरेडी नो गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय जी, करेक्ट. नाउ अब देखो, अगर मैंने गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, अगर मैंने गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, इसमें से करंट जाएगा, ठीक है, इसमें से क्या जाएगा, करंट विल गो लाइक दिस आई. ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दिस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या डेवलप होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा V. यहाँ पे मैंने बैटरी क्या लगाया, इसका EMF E है. ओके, करेक्ट. एवरीवन कैन हियर मी? Yes, sir. ओके, ठीक है. बट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं डायरेक्टली बैटरी लगा रहा हूँ तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. यस और नो? Yes, ओके, तो इफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर तो क्या होगा, उसका निडल एक्सट्रीम एंड पे आ जाएगा ना, करेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे करंट को मेजर नहीं करना है, मुझे तो वोल्टेज को मेजर करना है, कितना वोल्टेज है. So now what we are going to do is we are going to use the property. कौन सी property? Property of resistance in series. We are going to use this property. Okay, we are going to use this property, resistance in series. Now what is resistance in series की property क्या है? कोई मुझे बता सकता है what is resistance in series की property? जब हम लोग resistance in series में connect करते हैं तो क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? Yes, सही. Hello, can you answer? Correct, Astha. Okay, but that is the formula you are giving me. I want what happens. What happens? Hello, are you guys there? Yes, Harsh. Yes, sir. Can you answer? No. Okay. Current is same. Correct. Correct. Current is same. Very good. So now when you connect a resistor in series like this, let's say this is R1, this is R2. So what happens if the current is flowing? So the current will be same. Okay, the current will be same. Just a sec.
ओके, या सो आई वाज सेइंग, हाँ, सो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे, सॉरी करंट क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है यहाँ पे, करेक्ट. सो आवर करंट इज कांस्टेंट. So now when the current is constant, so what changes when you connect a battery? When you connect a battery, hello, okay, sorry guys. हाँ, so what we have, see, we have a current over here. तो अगर मैंने यहाँ पे पोटेंशियल V है मेरा बैटरी का, so what will happen, यहाँ पे पोटेंशियल V1 रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल V2 रहेगा, करंट विल रिमेन कांस्टेंट. सो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, V will be equal to V1 plus V2. Okay, V is equals to V1 plus V2. Anyone has a doubt up here? No, sir. No? Okay. ठीक है, तो ये कंसेप्ट सबको पता है ना? Yes, sir. Okay, ठीक है. So now using this concept we are going to construct the galvanometer. ठीक है, using this concept what we are going to do is we are going to construct the galvanometer. Okay, so देखो, okay, so what we have a voltage. Okay, we have, ये जहाँ पे V दिख रहा है इसका मतलब हमने यहाँ पे बैटरी एक कनेक्ट किया है. ठीक है, यहाँ से करंट I जा रहा है. अब ये करंट I स्प्लिट होके इसमें से IR गया करंट. ठीक है, और यहाँ से IG करंट गया. ओके, ठीक है. नाउ हियर यू कैन सी दैट जो मेरा रेजिस्टेंस X है और रेजिस्टेंस G है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. यस और नो? Yes, sir. ओके, नाउ, और ये जो पूरा पार्ट है, दिस होल पार्ट, इतना पार्ट इसके साथ में पैरेलल में है, ये वाले रेजिस्टेंस के साथ में पैरेलल में है, दिख रहा है? ये वाले रेजिस्टेंस के साथ में पैरेलल में है, दिख रहा है ना? Yes, sir. ओके, सो नाउ लेट्स यूज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, ये वाला. ठीक है, तो हम लोग लेट्स से बोलते हैं इसका पोटेंशियल Vx है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल Vg है, टोटल पोटेंशियल V है. तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू Vx प्लस Vg. अभी Vx क्या होगा, Vx will be equals to Ig current
जो इसमें से जा रहा है वो IG करंट जाएगा, IG टाइम्स पोटेंशियल कितना, रेजिस्टेंस कितना है, X है, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है। हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला। यहाँ पे R मेरा X है, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, VG विल बी IG टाइम्स G। अब हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमको क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू IG(X) प्लस IG टाइम्स G। ओके, ठीक है। अब हमको यहाँ से X निकालना है, क्या निकालना है, X निकालना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली X इक्वल्स टू V माइनस IG टाइम्स G, ओके, अपॉन IG। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग दिस विल गेट V अपॉन IG माइनस G। क्लियर? Anyone has a doubt up till here? No, sir. ओके, तो यहाँ पे मेरा IG क्या है, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। IG क्या है मेरा, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर है। नाउ जैसे हमने सिमिलर लास्ट टाइम में देखो हमने यहाँ पे एक किया था ना, क्या कहते हैं, आपको याद होगा ये N लिया था हमने, आपको याद है ये N वाला कहाँ गया, यहाँ ये देखो ये रहा ना, ये याद है, ये वाला कंडीशन सबको याद है, I इज इक्वल्स टू N टाइम्स G वाला, याद है ये कंडीशन सबको? ओके, सो सिमिलरली अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से कोई हो क्यों लेटर बना, अमित प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो जैसे हमने लास्ट टाइप में एमीटर के टाइम पे किया था, वैसे सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट मीटर के टाइम पे भी करेंगे। हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि लेट्स से NV N इक्वल्स टू V अपॉन VG। अब ये V अपॉन VG कैसे आया, देखो अगर मैंने बोला कि अगर मैंने 1 वोल्ट अप्लाई किया तो 1 वोल्ट के लिए सपोज करो जो एमीटर है वो कुछ डिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है। मतलब सपोज करो ऐसे एमीटर है, इसका स्केल है, पहले यहाँ पे रखा, ये मतलब उसका पॉइंटर यहाँ पे, तो अगर मैं 1 वोल्ट सप्लाई करता हूँ, ओके, इफ आई सप्लाई 1 वोल्ट, कहाँ गया, नो, इफ आई सप्लाई 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट के लिए वो कहीं यहाँ पे आता है, ठीक है। तो अगर मैंने 2 वोल्ट सप्लाई किया, 2 वोल्ट के लिए कहीं यहाँ पे आएगा वो, 3 वोल्ट सप्लाई किया तो 3 वोल्ट के लिए यहाँ पे आया, ठीक है। तो मैं कितना वोल्ट सप्लाई करूंगा कि वो यहाँ पे आ जाए, तो लेट्स से मैंने N वोल्ट, अगर मैंने N वोल्ट सप्लाई किया, N टाइम्स V सप्लाई किया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या ये? Yes, sir. किसी को डाउट है क्या इसके Yes, अंदर? sir. किसी को डाउट है इसके अंदर तो आस्क मी, इफ एनीवन हैज अ डाउट आस्क मी दिस, अगर किसी को नहीं समझा है तो ये वाला पार्ट देखो। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू N टाइम्स VG, और ये मेरा VG क्या था पता है क्या, ये 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, जो मैंने बोला ना 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, ये वो है, ठीक है। ओके, सो विद दैट इन द माइंड मेरा VG क्या होता है, बेसिकली VG क्या होता है, IG टाइम्स G होता है, करेक्ट। तो मैं क्या लिखूंगा, N इक्वल्स टू V अपॉन N इक्वल्स टू, एक मिनट, V अपॉन VG, VG नहीं, IG टाइम्स G, ठीक है। ओके, सो अब हम ये इक्वेशन को अगर देखें, तो देखो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, व्हाट वी कैन सी, V अपॉन IG दिख रहा है हमको, V अपॉन IG दिख रहा है,
तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ V अपॉन आई जी इक्वल्स टू n टाइम्स G, करेक्ट? सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट? अगर हम ये इक्वेशन को ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमको क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू एन जी माइनस आई जी टाइम्स जी। ओके, सो सिमिलरली अगर फिर मैं g को कॉमन ले लूं तो मेरा x विल बी इक्वल्स टू n माइनस आई जी टाइम्स g, n माइनस आई जी टाइम्स g। ओके ओके, anyone has a doubt? Anyone has a doubt? No, sir. Okay, please write down then, copy कर लो। Okay, please explain from n times g. Okay, what you did not understood, Ikra? Which part? सर जहाँ पे आपने वो लिखे ना x इज इक्वल टू v माइनस आई जी अपॉन आई जी। X is equals to v minus, नहीं सर उसके ऊपर। एक मिनट, कहाँ पे? X is equals to v minus, okay, ये वाला v हाँ। अपॉन आई जी माइनस आई जी, हाँ वो वाला। हाँ उसके सर, नीचे से? नेक्स्ट स्टेप में सर, अच्छा नेक्स्ट उसके, स्टेप में जी के साथ जो आई जी था वो नहीं है। अच्छा वो मैंने लिखना भूल गया शायद से। ओके ठीक है, और कुछ? फिर उसके बाद से? हाँ सर, उसके बाद से ही नहीं समझा। और उसके बाद से नहीं समझा। अच्छा देखो सुनो, अगर तुमने वोल्ट मीटर तो देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है वोल्ट मीटर? हेलो, सर देखा है वोल्ट मीटर? नो। नहीं देखा है, अच्छा ठीक है, मैंने डायग्राम बनाया था। अभी दिख रहा है? ये डायग्राम दिख रहा है? यस। अच्छा देखो, अब यहाँ पे स्केल दिख रहे हैं ना, लाइनिंग दिख रही है स्केल की। यस सर। ओके चलो ठीक है। देखो अगर सपोज करो ये टोटल कितनी लाइंस हैं, यहाँ से 0 से स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ तक जाता हूँ। लेट्स से टोटल n लाइंस हैं। कितनी लाइंस हैं? एन। n लाइंस हैं। और ये n लाइन को लाने के लिए, n लाइन को लाने के लिए मुझे टोटल कितना वोल्ट लगता है? v वोल्ट लगता है। कितना वोल्ट लगता है? वी। v। तो अगर मैं v वोल्ट अप्लाई करूंगा तो ये जो कांटा है वो किधर आ जाएगा? ये एंडिंग पे आ जाएगा। कहाँ पे आएगा? एंडिंग पे। ठीक है, अभी ये 0 लाइन से 1 लाइन का जो वोल्टेज है वो कितना है? vg है। ठीक है, कितना है? वी जी। vg है। ठीक है, तो मेरे को अगर vg को, अगर अगर मुझे v को vg के टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो कितने लाइंस हैं? n लाइंस हैं। हेलो, कितने लाइंस हैं? n लाइंस, n लाइंस है। ठीक है, एक लाइन का वोल्टेज कितना है? vg है।
तो टोटल वोल्टेज वी है तो क्या हो जाएगा, एन टाइम्स वी हो जाएगा ना। मैं Yes, sir. एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो तुम्हारे पास में 10 रुपीज है, ठीक है। ये 10 रुपए किससे बने हैं, एक एक रुपए से बने हुए हैं। तो टोटल कितने रहेंगे एक एक रुपए के कॉइन, 10. 10 कॉइन्स रहेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 इक्वल्स टू 1 टाइम्स 10, मतलब 10 रुपया इज इक्वल्स टू एक एक रुपए के 10 कॉइन। Yes, sir. तो सिमिलरली यहाँ पे भी v इज इक्वल्स टू vg टाइम्स n। तो देखो यहाँ पे n मेरा 10 है, यहाँ पे कितना मैंने, यहाँ पे मैंने बोला n लाइंस है। समझ में आया अभी? Yes, sir. स्टिल एनीवन अभी भी डाउट है तो पूछ लो, अभी क्लियर नहीं हुआ है तो पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। हेलो, No, sir, clear. क्लियर हो गया? Yes. पक्का ना? सर बस एक बार इसका लास्ट स्टेप समझा देना, कौन सा लास्ट स्टेप? जो भी आपने सॉल्व किया ना वो वाला। देखो मैंने एग्जांपल दिया तुमको, सर ये सपोज वाला नहीं, फिर अच्छा ये जो भी आपने समझाया। हाँ ये इधर ये वाला पार्ट, हाँ सर, ये लास्ट में जो आपने पार्टीशन मार के इस तरफ लिखा है ना वो वाला। अच्छा ये वाला पार्ट, अच्छा यहाँ तक समझा, यहाँ तक समझा? यस। ओके, अब देखो मुझे क्या मिल गया, मुझे v अपॉन आई जी मिल गया, यस सर। मुझे v अपॉन आई जी मिल गया ना। ओके, तो अब मैंने क्या किया, देखो अब मैंने क्या किया, ये जो v अपॉन आई जी था ना, ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये वाले पार्ट में। कहाँ सब्स्टिट्यूट किया, ये वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो जब मैं अगर इसको ये वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, v अपॉन आई जी के जगह पे मैं एन जी लिख सकता हूँ, यस सर। है ना। क्योंकि देखो ना, क्योंकि v अपॉन आई जी क्या होता है, एन जी होता है, तो मैंने एन जी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो यहाँ पे एन जी माइनस आई जी टाइम्स जी है, तो जी कॉमन आ गया, तो मेरे को रेजिस्टेंस का इक्वेशन मिल गया, है यस ना। सर। ओके, सो नाउ अब देखो एवरीवन, ये x क्या बता रहा है, x मुझे ये बताएगा कि मुझे कितना रेजिस्टेंस चाहिए रहेगा, और मुझे अगर मुझे इतना वोल्टेज वाला वोल्ट मीटर बनाना है, ठीक है। x क्या बताता है यहाँ पे मुझे, x मुझे क्या बताता है, लिख लो, x क्या बताता है, x basically tells the amount of resistance required to manufacture the given voltmeter from a galvanometer. Write down this thing. What does the x indicate? What does the x indicate? The amount of resistance required to convert, the amount of resistance required to convert the given galvanometer into a particular value of voltmeter, to particular value of voltmeter. Okay, Sir, repeat from first. okay. The x denotes the amount of resistance required to convert the given galvanometer into a particular voltmeter, Done? सबने लिख लिया? Sir, 1 minute. ओके, चलो लिख लो फटाफट, एंड देन वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। सर प्रीवियस वाला स्क्रीन दिखाओ। एक मिनट, ओके। हो गया? So wait for 1 minute. ओके ओके, ठीक, हो जाएगा तो मुझे बता दो, आई एम वेटिंग।
टेक स्क्रीनशॉट्स इफ पॉसिबल. अगर आप लोग अभी लिख रहे हो तो लिखो मत. डू वन थिंग, टेक स्क्रीनशॉट. ओके. Okay, write down one problem. Okay, write down the problems now. Everyone is being done or still someone is remaining? बता दो अगर मुझे कोई बाकी है तो. किसी का बाकी है तो मुझे बता दो. सबका हो गया है? हो गया है ना सबका? सर Yes, एक sir. सेकंड के लिए दिखाओ ना सर, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. अच्छा ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो. Yes, Okay. sir. डन. ओके ठीक है. चलो राइट डाउन द न्यूमेरिकल. मैं डिक्टेट कर रहा हूँ. ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल है. राइट डाउन. अ गैल्वेनोमीटर has a resistance. A galvanometer has a resistance of 25 ohms. ठीक है. A galvanometer has a resistance of 25 ohms and its full scale deflection current. फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब क्या होता है? आईजी होता है. फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 25 माइक्रो एम्पियर्स. what resistance should be added to it? What resistance should be added to it to convert or to have a range of 0 to 10 volts? To have a range of 0 to 10 volts. ओके. हमको x निकालना है. x. ठीक है. Everybody has written down the question. सबने क्वेश्चन लिख लिया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अच्छा तो देखो अभी Yes, हम. sir. हाँ अब देखो हमको वोल्टेज का रेंज कितना बोला है? 0 to 10 का. करंट कितना बोला है हमको? 25 माइक्रो एम्पियर फुल डिफ्लेक्शन करंट. रेजिस्टेंस कितना बोला है? 25 ओम्स. निकालना क्या है हमको? x. ठीक है. तो देखो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे. ठीक है. तो क्या आएगा? B is equals to IG times G plus IG times X. Therefore, solution में यहाँ पे लिखता हूँ. X will be equals to B minus IG times G upon IG. Okay, that will be equal to V कितना है? 10 वोल्ट. मैक्सिमम कितना है हमारा? 10 वोल्ट है तो हम लोग 10 वोल्ट लेंगे. 10 माइनस IG कितना है? 25 माइक्रो एम्पियर्स. तो 25 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू G कितना है? 25 है. सो 25 अपॉन IG कितना है? 25 माइक्रो एम्पियर्स. तो 25 इंटू 10 टू पावर -6. चलो मुझे आंसर बता दो इसका कितना आता है. सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर हाउ मच इट इज. ओके, सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर. कितना आएगा इसका? $15. क्या 15? नहीं 15 तो नहीं है. 15 गलत आंसर है. कौन सा फॉर्मूला है टेक्स्ट बुक में प्रवीण? सर उसमें सिर्फ B माइनस G है.
वो भी तो उससे भी करो, उससे भी आंसर आएगा, ये करो इससे भी आंसर आएगा। ओके सर। बट अगर टेक्स्ट बुक से करोगे तो फायदा क्या हुआ करके, कॉपी नहीं करना है ना। हाँ सर। ठीक है, देखो सबको 400 मेगा ओम्स आया क्या? एवरीबडी गॉट 400, सॉरी 400 किलो ओम्स आया क्या सबको? अप्रोक्सीमेटली 400 किलो ओम्स आएगा आंसर, अप्रोक्सीमेटली 400 किलो ओम्स आंसर आता है। ठीक है, अप्रोक्स 400 किलो ओम्स, मतलब 400 इंटू 10⁻³ ओम्स, ये आंसर आता है अप्रोक्स में, यही आंसर है। आया क्या सबको 400 किलो ओम्स? हाँ, ओके, चलो ठीक है। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वोल्टमीटर, अ वोल्टमीटर, ये आप लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अ वोल्टमीटर हैज अ रेजिस्टेंस, अ वोल्टमीटर हैज अ रेजिस्टेंस, कितना बोला है? 30 ओम्स। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बोला है कितना? 30 ओम्स। A voltmeter has a resistance 30 ohms. What will be the reading? What will be the its reading when it is connected? When it is connected across a cell, when a voltmeter has a resistance of 30 ohms, what will be its reading when it is connected across a cell of EMF? EMF कितना बोला है? 2 volts, having internal resistance, having internal resistance, R कितना है? 5 ohms। ठीक है, तो देखो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमको दिया है। ठीक है, ओके, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस दिया, तो हमको इसको एक काम करते हैं, एक्स की जगह वी आर बोलते हैं। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस वी आर इज 30 ohms। हमको ईएमएफ 2 वोल्ट दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 वोल्ट दिया है। ठीक है, हमको पूछा है रीडिंग क्या रहेगा, तो वोल्टेज निकालना है हमको, वी निकालना है। कोई बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? एनी आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड? यस आस्था, सही, एनीवन? Okay, I'm giving you 5 minutes. Okay, repeat the question. A voltmeter has a resistance 30 ohms. What will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volts having internal resistance 5 ohms? Having internal resistance 5 ohms. चलो मैं आप लोगों के लिए सर्किट भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, देखो सर्किट ऐसा है, ये मेरा वोल्टमीटर है। ठीक है, ये मेरा बैटरी है, दिस इज माय इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 volts, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ohms है।
वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वी आर कितना है, 30 ओम्स है। मुझे यहाँ पे इसका रीडिंग निकालना है, ठीक है। ओके, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, आई। ओके, आर यू गाइज एबल टू सॉल्व इट? सॉल्व कर पा रहे हो आप लोग? just still waiting for me to solve. Yes, okay, everyone is waiting for me to solve. Great, I can see. Okay, so what we are going to do is we are going to use KCL and KVL. KCL and KVL लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। नाउ सी वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करेक्ट? वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ना? आर यू गाइस देयर? गिव मी आंसर। Yes, sir. हाँ Yes, तो sir. हाँ तो आंसर्स दो थोड़े, ठीक है। हाँ तो वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो क्या रहेगा, साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? Positive. नेगेटिव Negative. नहीं, नेगेटिव। तो क्या आएगा, आई टाइम स्मॉल आर, ठीक है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुए, देन वी आर गोइंग अगेन। हमको यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कितना है, 30 ओम्स, तो माइनस से आएगा, माइनस आई टाइम्स कैपिटल आर, और वी आर बोलते हैं, हमने इसके रेजिस्टेंस को वी आर बोला है ना, तो वी आर, आई वी आर। तो उसके बाद में हम यहाँ से गोल घूम कर आए, और फिर हमको, अब हम यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो बैटरी का वोल्टेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव जाते तो नेगेटिव आता, तो +2 इक्वल टू 0, करेक्ट, राइट। तो क्या आ जाएगा, Yes. तो अब क्या हो जाएगा, therefore 2 इक्वल्स टू आई आर प्लस आई वी आर, मतलब वोल्टेज ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का वोल्टेज, करेक्ट। Yes, sir. तो क्या हो गया, अब हम लोग आई को कॉमन ले लेते हैं, हमको करंट तो दिया नहीं है लोगों ने, तो स्मॉल आर प्लस वी आर दिया है हमको, ये कितना है, 2 है, तो आर प्लस वी आर कितना, आर कितना है, एक 5 ओम्स है, एक 30 ओम्स है, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 35 ओम्स। सो ये हो गया 35 आई टाइम्स 2, तो आई इक्वल्स टू 2/35, आई इक्वल्स टू 2/35, करेक्ट। कितना होता है 2/35, जरा मुझे बता दो, 2/35 कितना होगा? हाँ देखो कितना होगा, 0.057 एम्पियर। तो हमको करंट मिल गया, हमको क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है, वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या आएगा हमारा, तो V इज इक्वल्स टू आई टाइम्स वी आर, मतलब वोल्टेज ऑफ रजिस्टर। तो क्या हो जाएगा, 0.057 टाइम्स क्या है हमारा, 30, राइट, हाँ 30, कितना होगा ये, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, 0.057 टाइम्स 30, तो 0.81 वोल्ट। तो इसमें कितना दिखेगा हमको, 0.81 वोल्ट दिखेगा। ओके, एनीवन हैज अ डाउट? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझा ये सॉल्यूशन? ऐसा कोई है जिसको ये सॉल्यूशन नहीं समझा? पहले कॉपी कर लो आप लोग, कॉपी कर लो।
यस इकरा, समझा आपको? Yes, sir. ओके, बाकी लोगों को? यस प्रणय? यस सर। सर कौन सा फॉर्मूला Yes, कब sir. आएगा नहीं समझ रहा है। ओके, कौन सा? उसके लिए ना आस्था आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो आपको क्वेश्चन देख के समझिएगा कि मतलब फिर कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है? यस शशांक, आपको समझा क्या? यस सर। ओके, ठीक है, चलो कॉपी कर लो एंड वंस यू आर डन लेट मी नो, देन आई विल टेल यू द अनदर क्वेश्चन। Okay, वो the new student, what his name? I forgot his name. यस सर। You are understanding? यस सर। आपका नाम मैं भूल गया, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुतेज है। Okay, Shutej, आपको समझ में आ रहा है ना? I mean, यस सर। even though you are new, like still, if you are not understanding anything, let me know. ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ। ओके, चलो एक मिनट, मैंने मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ किया। 0.057 into 30। Yes, sir. 1.71. हाँ 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 1.71 आता है। ओके, हाँ मैंने गड़बड़ किया है। क्या हो रहा है? 1.71, सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने गड़बड़ किया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। या the EMF of a cell, write down the EMF of a cell is balanced by a length. The EMF of a cell is balanced by a length of 120 सेंटीमीटर। तो हमको बैलेंसिंग लेंथ दिया है, ठीक है? बैलेंसिंग लेंथ, तो BALANCING, बैलेंसिंग लेंथ हमको कितना दिया है? 120 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है? Of a potentiometer wire, the EMF of a cell is balanced by a length of 120 centimeter, by a length of 120 centimeter of a potentiometer wire. When the cell is shunted, when the cell is shunted by a resistance of 10 ohms, तो रेजिस्टेंस कितना बोला है? 10 ohms। इसको हमने शंट किया है सेल को, मतलब सेल के पैरेलल में लगा दिया है हमने। shunted by a resistance of 10 ohms, the balancing length is reduced by 20 centimeter। reduced by 20 centimeter मतलब न्यू लेंथ कितना हो गया? तो बता सकता है? 100. करेक्ट, न्यू लेंथ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, reduced by 20 सेंटीमीटर। ओके, एक बार मैं फिनिश करता हूँ, देन आई विल रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन, ठीक है? इट इज रिड्यूस्ड बाय 20 सेंटीमीटर। find the internal resistance of the cell. Find the internal resistance of the cell. I'll read once again, okay? Listen the question carefully and write down those who have missed the question. The EMF of a cell is balanced by a length of 120 centimeter of potentiometer wire. When the cell is shunted by a resistance of 10 ohms, the balancing length is reduced by 20 centimeter. Sir, हाँ, sir, the new length you have written the 100 centimeter in question, it is not there. मैंने क्या? Read the question. Read the question. Okay. The balancing length is reduced by 20 centimeter. Okay, sir, understood. Find the internal resistance of the cell. Find
the internal resistance of the cell. Okay, चलो I'm giving you 5 minutes. ठीक है, I'll give you hint भी दे देता हूँ. ठीक है, आपको वो वोल्टमीटर वाला जो हमने किया है ना वो वाला यूज करना है. Sir, Okay. what is balancing length? Okay, that this is with respect to Sir. हाँ बोलो. Sir, we have to use R is equal to R L1 upon L2 minus 1. That formula, right? R is equals to पर Small. हमको हाँ ये वाला कहाँ गया वो देखो हमने Internal गैलोरीमीटर resistance formula. हाँ इंटरनल This रेजिस्टेंस one, ये वाला this फॉर्मूला है ये वाला दिख रहा है ना. Yeah. Yes, that is. Yeah. हाँ चलो ठीक है. अच्छा Sir, चलो so in that L1 will be 120 and L2 will be the new length, right? 100. देखो यहाँ पे उसने बोला है कि इट इज रिड्यूस्ड बाय दिस ना. So we It have is- to keep it as 20 or सोचो ठीक है. आई एम गिविंग यू 5 minutes. ओके तब तक क्या नाम था आपका मैं भूल गया. क्षितिज. Yes, हाँ. sir. See, this is basically there is this one concept of finding an internal resistance of the cell with the help of potentiometer. ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने किया था तो वहां से हमको ये फॉर्मूला मिला है. ठीक है, सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला. नो बैलेंसिंग लेंथ पे क्या होता है, व्हेन देयर इज अ बैलेंसिंग लेंथ सो नो करंट फ्लोज टू द गैल्वेनोमीटर. ठीक है, एक बार आप वीडियो लेक्चर्स देखोगे ना तो आपको समझेगा. अगर स्टिल आपको नहीं समझेगा देन आस्क मी. ठीक है, तो आप एक बार है ना वीडियो लेक्चर्स मांग लेना मैम से. ठीक है. Okay, sir. हाँ, नाउ रेस्ट ऑफ यू आई एम गिविंग यू 5 minutes. ठीक है, थिंक एंड टेल मी द आंसर. अगर आपको नहीं आएगा देन आई विल बी सॉल्विंग. sir. हाँ बोलो. Sir, I got 50 if I am taking L2 as 20. You got how much? Okay, Sir. and those who got the answer na please put it in the chat. ठीक है, don't say. ठीक है, just put the answers in the chat. I'll check and we'll come to the conclusion whether it's correct or not. ठीक है. Sir, but I had a doubt that L2 should be 20 or it should be the new length. हाँ ठीक है ना, तो आप just I'm going to do anyways. ठीक है, तो आप 5 मिनट वेट कर लो ना. ठीक है.
ओके, एवरीबडी गॉट द आंसर? ओके, अच्छा आ गया, आपको भी आंसर आ गया? क्या नाम है, भूल गया। Sir, is the सही, answer 2. हाँ हाँ करेक्ट है मोनिका। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो मैंने बताया था वही फॉर्मूला यूज करना है। R इज इक्वल्स टू R L1 अपॉन L2 माइनस 1। ठीक है, तो हमारा R कितना है, 10 ओम्स है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, L1 माइनस L2 अपॉन L2, करेक्ट। सो दिस विल बी 10 इंटू L1 will be 120, L2 will be 100 upon 100, ठीक है, that will be 10 into, this will be 20 upon 100, 120 minus 100 is 20, 20 upon 100 will be 0.2, okay, so 10 into 0.2 will be 2, तो आंसर will be 2 ohms। सबको देखो 2 ohms आया है क्या आंसर? Yes, sir. R equals to 50 Yes, when sir. L2 is 20। ओके ओके ठीक है, चलेगा, फाइन, गुड। ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये मैं अब देखो, ये जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में Sir, नहीं है। just wait. अच्छा ठीक है, चलो लिख लो लिख लो। अभी देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को करना है, ठीक है। Yeah, done. Sir. हाँ, ओके, सबको पता है क्या करना है? कोई बता सकता है क्या करना है हमको यहाँ पे? क्या करना है, कोई बता सकता है? ओके, ओके, आपको निकालना है करंट, आई निकालना है। नो नो, वी हैव टू फाइंड आउट करंट आई, ठीक है, ये थर्ड न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है, आपको निकालना है। हाँ, वेरी गुड प्रणय, आपको पता चल गया कैसे। अच्छा कोई बता सकता है कैसे सॉल्व करना है इसको? कोई बता सकता है कैसे सॉल्व करना है? किरचॉफ्स करंट लॉ। करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड, ओके। हाँ, यू हैव टू यूज लूप लॉ, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट यू कैन डू, आई कैन गिव यू अ हिंट, ठीक है। आप है ना इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं इफ यू वांट ना। आपको ये बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंप्लीफाई दिस सर्किट, ओके, यू कैन सिंप्लीफाई द सर्किट। Okay, I'm giving you 5 minutes. Afterwards, I'll be solving it. ठीक है? आप लोग भी ट्राई करो. Just don't sit. ठीक है? Just don't sit idle. सोनाली, खाली बैठे हो. Solve करो, solve.
ठीक है, ट्राई करो, एटलीस्ट नहीं आ रहा है तो। यस, एंड आई वांट एवरीवन्स कैमरास शुड बी ऑन, व्हाई इट इज ऑफ? I want everyone's cameras should be on. Okay. Don't just sit, solve करो. नहीं आता है तो भी ट्राई करो. हाँ भक्ति, आ रहा है आपको? ओके ओके, दिख रहा है. फाइन फाइन, सॉल्व करो. हाँ हाँ दिख गया. ट्राइंग. यस श्वेता, आप आर यू सॉल्विंग? Yes, sir. ओके, Trying. ट्राइंग. ओके ठीक है. See, you have to simplify. I have given you the hint. आपको उसको सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है. रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल. देखो कहीं पे वहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता है क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा तो देखो क्या करना है आपको. व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा तो देखो कहीं वहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या, कौन से रेजिस्टेंस का देखो काम वहां पे नहीं रहेगा. फिर इतना सारा हिंट दे दिया मैंने. ओके चलो, आई एम सॉल्विंग नाउ. ठीक है, आई एम सॉल्विंग नाउ. देखो सबसे पहले ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो. सिर्फ इतना पार्ट अगर आप देखोगे, करंट कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? अरे बाबा, करंट कहाँ से निकलता है? पॉजिटिव से निकलता है, तो यहाँ से करंट ऐसे रहेगा. ठीक है, अच्छा उसको छोड़ो, पहले देखो ये जो सर्कल किया है वो देखो. सर्कल वाला, खाली सर्कल वाला पार्ट कैसा दिख रहा है? ये जो खाली सर्कल किया हुआ पार्ट कैसा दिख रहा है? किसकी तरह दिख रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है. एवरीवन अग्री? Yes, sir. तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये जो बीच वाला आर है, ये वाला पार्ट, क्या ये गैलोमीटर की जगह पे आया है? Yes, sir. तो देखो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है? व्हेन R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4. LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, तब बैलेंस होता है, राइट? Yes. Yes. तो यहाँ पे Yes, देखो sir. सब यहाँ के इसके चारों रेजिस्टेंस R है, तो मतलब ये तो बैलेंस होने ही वाला है ना एनी केस में. देखो ये रेजिस्टेंस, इसके जो चारों रेजिस्टेंस है वो क्या है? R है. तो जब मैं बैलेंस करूंगा तो LHS इक्वल्स टू RHS होने ही वाला है. तो जब ये, इसका मतलब क्या है? ये तो बैलेंस्ड है. तो जब ये बैलेंस्ड है, सो इन दैट केस क्या होगा? जो करंट है, द करंट विल नॉट फ्लो फ्रॉम हियर. तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, जो बीच में मैंने जो रेजिस्टेंस बनाया था यहाँ पे ऐसा वाला, यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं होगा. जब यहाँ से करंट ही नहीं फ्लो होगा तो फिर मुझे इसको रखने की जरूरत नहीं है. समझे? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Yes. Yes. Yes, sir. अच्छा अब देखो, अब करंट फ्लो नहीं होगा तो अब देखो हमारे पास दो रेजिस्टेंस हो गए, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस. ये दोनों कैसे कनेक्ट हो गए? सीरीज में कनेक्ट हो गए. तो चलो सर्किट को हम वापस एक बार रीड्रॉ करते हैं. सिंप्लीफाई करने, जो मैं बोला था सिंप्लीफाई, तो आपको सिंप्लीफाई करना था ऐसे. तो ये रेजिस्टेंस R हो गया. फिर क्या हो गया? मेरा बोर्ड हैंग हो रहा है. ओके, ये रेजिस्टेंस R हो गया. फिर एक रेजिस्टेंस ये 2R हो गया. कैसे?
ये आर और ये आर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना? कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में, तो ये 2R हो गया। फिर देखो इन दोनों के बीच से एक रेजिस्टेंस जा रहा है, तो इन दोनों के बीच से एक रेजिस्टेंस कैसे गया? ओके, नाउ ये हैंग हो रहा है। ओके, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ, गिव मी 2 minutes। ये रेजिस्टेंस हो गया R। ओके, और फिर उसके बाद में यहां से एक रेजिस्टेंस क्या है, इससे कनेक्टेड है, राइट? यहाँ पे बैटरी है लाइक दिस, फाइन, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये दोनों एक ही है, और यहाँ से ये वायर ऐसे गया है। ओके, और ये वायर ऐसे गया है, ये बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, करेक्ट? ऐसा बन गया सर्किट। एनीवन हैज अ डाउट? नो सर। अच्छा, अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा और इसको और छोटा करते हैं हम लोग। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये ऐसे कनेक्टेड है, तो मैं सिंपली इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, और ये यहाँ से वायर सीधा ऐसे ले लेता हूँ। ओके, ठीक है। Yes. नाउ ये भी R है, ठीक है। ये कितना है? 2 वोल्ट से, ये कितना है? 3 वोल्ट से। और कुछ कहीं हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लूप्स काउंट करते हैं। अब हम इससे देखो, इसको भी हम कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टार डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, बट हमने वो अभी किया नहीं, वो जेई में करेंगे। दिस इज अ डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, डेल्टा मतलब ट्रायंगल, ठीक है। सो देयर इज वन कॉन्फ़िगरेशन, कन्वर्जन होता है, क्या कहते हैं? स्टार, स्टार मतलब ऐसा, ये स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार। डेल्टा मतलब ट्रायंगल, स्टार मतलब ऐसा फॉर्म। तो ये हमने अभी किया नहीं है, मतलब ये जेई वाला है, जेई में करेंगे हम लोग। तो अभी तो फिलहाल हम लोग नॉर्मल क्या कहते हैं, लूप लॉ से करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग अभी लेबल कर देते हैं पॉइंट्स को, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो चलो अभी हम लूप्स देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले कौन सा लूप है? हम ये देखो, अब मैंने देखो आप लोग को बताया था ना, जब हमारे पास में 2 बैटरीज हैं, तो हम लोग कौन से बैटरी से स्टार्ट करेंगे? मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास 2 बैटरीज है सर्किट के अंदर, तो कौन सी बैटरी से स्टार्ट करना चाहिए हमको? द बैटरी विथ द बिगेस्ट ईएमएफ, जिसका ईएमएफ सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे ईएमएफ किसका ज्यादा है? 3 वोल्ट का ज्यादा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लूप को हमेशा, ठीक है। तो करंट मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, सो चलो लेट्स गो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सबसे बड़ा लूप देखते हैं। सबसे बड़ा लूप कौन सा है? सबसे पहला लूप ए बी सी, ए बी सी ई ए, करेक्ट? ए बी सी ई ए, सबसे बड़ा लूप यही है ना? Yes, sir. Yes, ओके, sir. अच्छा, उसके बाद एक लूप कौन सा आता है? सेकंड लूप देखो, सेकंड लूप कौन सा है? ए बी सी जी एफ ए, ए बी सी जी एफ ए, करेक्ट? ओके, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड वाले बैटरी के लिए, 2 वोल्ट की बैटरी के लिए। थर्ड लूप है देखो हमारा, एफ जी सी ई एफ, एफ जी सी ई एफ, और फिर एक ये छोटा वाला लूप, फोर्थ वन क्या है हमारा? एफ जी डी ई एफ,
ओके, क्लियर हो गया? बस ये चार लूप है, इसमें हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है? करंट निकालना है, आई। ओके, द टोटल करंट आई। ओके, द टोटल करंट इन द सर्किट हमको वो निकालना है। फाइन, चलो अब हम पहले सबसे बड़ा वाला लूप ले लेते हैं। सबसे बड़ा वाला लूप ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो क्या आएगा? ए बी सी ई ए, तो ये वाला लूप आएगा। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है? वैल्यूज बताएगा? वैल्यूज, कैन समवन टेल मी द वैल्यूज? मुझे वैल्यूज कोई बताएगा? वैल्यूज फटाफट, क्या आएगा सबसे पहले? हाँ गाइस, हम लोग कहाँ से जा रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो पहले आएगा +3 वोल्ट, +3। देन क्या हमको आया? वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, तो चलो यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से भी करंट आई, यहाँ से करंट I1 आ रहा है, यहाँ से करंट I2 आ रहा है। ठीक है, ओके, अब क्या होगा? ये करंट यहाँ जाएगा, यहाँ पे जाके अब यहाँ से ये करंट स्प्लिट होगा। आप लोग को दिख रहा है ना? I2 स्प्लिट होगा, यहाँ पे बनेगा I3, ये बनेगा I4। ओके, और फिर यहाँ पे ये मिलेगा पॉइंट C पे। यहाँ पे जो करंट रहेगा वो रहेगा I3 प्लस I1। जो यहाँ पे करंट रहेगा वो रहेगा I3 प्लस I1 प्लस I2, मतलब यहाँ पे करंट जो रहेगा वो रहेगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। ये करंट यहाँ जाएगा। ठीक है, अरे वापस स्प्लिट होके करंट यहाँ पे I2 करंट जाएगा और यहाँ पे I1 करंट आएगा। ओके, एवरीवन इज क्लियर? आप लोग को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, हाँ Sir, बोलो। I1 plus I2 current जो ऊपर लिखा है ना, कहाँ पे? हाँ there only sir. यहाँ पे लिखा है हाँ, I1 प्लस I2 लिखा है ना? Sir, नहीं हाँ बोलो। समझा। ये नहीं समझा? I1 प्लस I2 कैसे आया, नहीं समझा? Sir, I4 भी आएगा ना? I Because देखो I4 is also सुनो moving in that direction. I2 क्या है? I3 प्लस I4 है ना? I2, I2 स्प्लिट हुआ ना, I4 और हाँ I3। yes. तो यहाँ पे जो करंट आया, वो कौन आया? I3 प्लस I1 यहाँ से आया, So और you यहाँ से wrote I3 plus I4 is equal to I2. Okay. हाँ, अब उतना बड़ा क्यों लिखूं मैं? ठीक है, तो हाँ, इसलिए मैंने understood. शॉर्टकट में I1 प्लस I2 लिख दिया। ओके, Yes sir. समझ में आ गया? Yes. ओके, ठीक है। सो नाउ ओके, सो वी गॉट दिस ना। अच्छा, मैं क्या मिटा रहा हूँ? I1 प्लस I2 यहाँ पे आया है। ओके, तो यहाँ पे हम एक और इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या कहते हैं? I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4। अच्छा, हम लूप देख लेते हैं ना। हाँ, तो यहाँ से 3 वोल्ट गया। अब यहाँ पे क्या आएगा? 2R है, दिस इज 2R, करेक्ट? तो क्या हो जाएगा? हम लोग वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इसलिए नेगेटिव साइन, -2R I3 प्लस I1, I3 प्लस I1। ओके, देन हमको ये R मिला, ये क्या है? I1 प्लस I2 है, माइनस R I1 प्लस I2, करेक्ट? ओके, देन उसके बाद में हमने लूप कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे आ गए, तो दैट इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे? ये वाला लूप लेते हैं, FG
डी ई, ये बात थर्ड वाला एफ डी जी ई, ठीक है, ये वाला लूप लेते हैं, एफ डी जी ई वाला लूप लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, हाँ एफ डी जी वाला लूप लेते हैं। तो क्या आएगा, एफ डी जी वाला लूप से क्या आएगा, 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, फिर क्या आएगा, ये I4 आ जाएगा, दैट इज माइनस R टाइम्स I4, एंड देन ये क्या आएगा, हाँ माइनस R टाइम्स I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ये वाला कौन सा था, A B C G F A, ये हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट, ओके। तो ये हमको लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा 3 वोल्ट। नाउ हियर वी आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस I3R, फिर ये हम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट बोल रहा हूँ, बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इसलिए माइनस आएगा, माइनस 2 वोल्ट इक्वल टू 0, ओके। तो देखो अभी हमको यहाँ पे सब कुछ तो मिल चुका है, ओके। चलो एक और लास्ट वाला इक्वेशन कौन सा है, इस पे बना देते हैं, काम आ जाएगा। एफ जी डी ई ए, कौन सा पार्ट है ये, एफ जी डी ई एफ, ये लूप हमने लिया है क्या, यस हाँ सर। ये लिया है ना, थर्ड वाला बाकी है, ये ले लिया है, ये बाकी है, एफ जी सी डी एफ ना, एफ, तो क्या आएगा 2 वोल्ट, फिर हम क्या जा रहे हैं, आर मतलब प्लस माइनस I3R, देन माइनस R I3 प्लस I1, एंड फिर ये रहा माइनस R I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। अच्छा आप लोग को दिख रहा है कि मतलब मैं क्या लिखा हूं, समझ में आ रहा है ना, ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या लिखा है, ओके ओके ठीक है, ठीक है, विल ट्राई टू फिनिश जितना अभी होता है, ठीक है, और बाद में आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। अभी मैं आपको देखो बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। सो वी हैव 1 2 3 4, वी हैव 4 इक्वेशंस, ठीक है, बट हमको निकालना सिर्फ एक चीज है, I1 प्लस I2 मतलब I1 प्लस I2 टोटल करंट निकालना है हमको, ठीक है। तो हम इजीली निकाल सकते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो साइमल्टेनियसली। देखो आपको R का वैल्यू पता है, राइट, R का वैल्यू कितना है, 10 वोल्ट है, सॉरी 10 ओम्स है, आप लोग सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, आप लोग सब्स्टिट्यूट करो, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड आउट I1 प्लस I2, ठीक है, फाइंड आउट I1 प्लस I2, ओके, विच इज इक्वल्स टू 1। कर सकते हो क्या आप लोग, हाँ Yes, sir. ठीक है, तो ट्राई करो इतना, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अगर नहीं आएगा तो आई विल डू, वैसे सिंपल ही है, ठीक है, यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है, कोई भी 2 इक्वेशन लेके सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, टेक एनी 2 इक्वेशंस यू विल गेट द आंसर, ओके, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड देयर इज अनदर लेक्चर आफ्टर दिस, ओके। चल, anyone else has a doubt in this, they can ask me. If anyone did not understood how to solve it, they can ask me right now, otherwise I'll stop the lecture here. No doubts. Everyone is clear, Yes, sir. Understood. पक्का ना, कर लोगे Yeah. आप लोग, Yes. yes or no, Yes, sir. बाकी लोग, Yes, sir. हाँ Yes, ठीक है, तो I Yes, want sir. the Yes, answer, sir. ठीक है, Yes, ठीक है, sir. सब्स्टिट्यूट करके you have to substitute R equals to 10, ठीक है, and this there are 4 equations, you have to solve it and find out I1 plus I2 आपको निकालना है, ओके, याद रखो क्या निकालना है, I1 plus I2 निकालना है आपको, ठीक है।
चलो, I'll stop here then. Bye. ओके एंड नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग मुझे आंसर बता देना, अगर आपको नहीं आएगा तो आई विल सॉल्व, अदरवाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो विल बी हैविंग जेई. ठीक है, चलो बाय.